ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨਰਜੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਿਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਕਿਟ ਹੈ, ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰੇਗਾ ਸਰਕਿਟ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਸਰਕਿਟ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਲਈ ਸਪੋਜ਼, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਓਪਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਿਟ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਿਟਸ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇ ਥਰੂ ਦੀ ਵਾਇਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰਕਿਟ ਹੈ। ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮੀਟਰ, ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਰੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਿਟਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਵਰਕ ਡਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਸਰਕਿਟ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫਲੋ ਜੋ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰੰਟ ਲਈ? ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਵਰਕ ਡਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ EMF ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੀ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਦੀ ਸੋਰਸ ਆਫ EMF। ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਨ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਰਸ ਆਫ EMF, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਇਨ ਦੀ ਸਰਕਿਟ। ਵਰਕ ਡਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨਰਜੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ EMF, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਤਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ the source of EMF in maintaining electric current in the circuit for a given time is called electric energy consumed in the circuit, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ,
ठीक है। हुण इहदे च असीं वर्क डन दा एक्सप्रैशन किस तरह फाइंड आउट करना है। देखो हुण इत्थे वर्क डन दा जिहड़ा असीं +1 च फॉर्मूला स्ट्राइक पहला उही करेगा, क्योंकि +1 तो +2 च आए हो तां +1 दे फॉर्मूलाज ही स्ट्राइक करनगे, फोर्स इनटू डिसप्लेसमेंट। पर ये फॉर्मूला असीं यूज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि इत्थे देखो फोर्स दी फॉर्म च नहीं गल करनी असी, ना ही असी डिसप्लेसमेंट। कभी भी चार्जिस जिहड़े है उन्होंने असी डिसप्लेसमेंट हमेशा जिहड़ी है मैक्रोस्कोपिक ऑबजैक्ट्स की गल करते हैं। मैक्रोस्कोपिक ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰजेस ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਫੋਰਸ ਕੌਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? बैटरी लगा रही है। बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V। तो डायरैक्टली F नहीं लिखना, हुण पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला च वर्क डन लिखांगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला दे विच वर्क डन दा असीं की एक्सप्रैशन फाइंड आउट किया है। पोटेंशियल डिफरेंस नूं असीं किस तरह लिखते हैं? वर्क डन डिवाइडिड बाय चार्ज। तो इत्थों वर्क डन की हो जाएगा? V इंटू क्यू आ जाएगा। ये हो गया साडे कोल वर्क डन। हुण क्यू नूं असीं किस तरह लिख सकते हैं? चार्ज नूं, चार्ज दे कारण करंट है और करंट दा एक्सप्रैशन असीं पिछे पढ़िया है, I इज़ इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो इत्थों Q असीं फाइंड कर लिया। Q कादे बराबर आ जाएगा? I इंटू T। और Q दी वैल्यू असीं इत्थे सबस्टिट्यूट करते हैं तो W की आ जाएगा? W दी वैल्यू इत्थे आ जाएगी VIT। दिस इज़ द एक्सप्रैशन फॉर वर्क डन। ठीक, और यही वर्क डन नूं असीं कवांगे स्टोर्ड एज आ इलैक्ट्रिक एनर्जी। और वर्क डन दे यूनिट्स की हो सकते हैं? जाउल। ठीक, और वोल्टेज दे यूनिट है वोल्ट। ठीक है, करंट दे यूनिट की है? एम्पीयर है। और टाइम दा यूनिट की है? सेकेंड। ठीक, ये है साडे कोल इलैक्ट्रिक एनर्जी। इस तो बाद है इलैक्ट्रिक पावर। पावर दे विच असीं की करना है? फिर उही वर्क डन दी ही गल करनी है, पर रेट मतलब किन्ने टाइम च किन्ना वर्क डन होया। नाल असीं की चीज़ इहदे च ऐड कर ली? रेट एट विच वर्क इज़ डन। ठीक है, मतलब किन्ने रेट दे नाल किन्ना टाइम लग रहा है कोई वर्क डन होने दे लई। कोई वर्क डन इत्थे किहड़ा हो रहा है? करंट दा फ्लो हो रहा है। कादे कारण? EMF करंट नू फ्लो करवा रही है सर्किट च। और ये वर्क डन होने लई किन्ना टाइम लग गया, दैट इज़ इलैक्ट्रिक पावर ऑफ दैट सर्किट, जिहड़ा भी सर्किट असी कंसिडर किया। ठीक है, तो डेफिनेशन की होएगी इलैक्ट्रिक पावर दी रेट एट विच, रेट मतलब किन्ना टाइम, एट विच बाकी सारी सेम डेफिनेशन, वर्क इज़ डन बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग इलैक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज़ कॉल्ड इलैक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। सेम वही डेफिनेशन है जो इलैक्ट्रिक एनर्जी च कीती, बस ये असी की चेंज किया कि किन्ने टाइम च रेट लिख दिता नाल, रेट किन्ने टाइम च किन्ना वर्क डन हो रहा है बाय द सोर्स ऑफ EMF। और पावर नू P नाल डिनोट करते हैं। फॉर्मूला की होया? वर्क डन डिवाइडिड बाय टाइम। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। हुण वर्क डन का फॉर्मूला पिछे असी की फाइंड किया है? VIT। इत्थे वर्क डन की जगह ते असी लिख देंगे VIT डिवाइडिड बाय T है। T नाल T कैंसल हो जाएगा तो पावर साडे कोल की आ जाएगा? V इंटू I। ये फॉर्मूलाज असी लर्न करने हैं। नुमैरिकल्स जिहड़े है अगर आ जाते हैं कि फाइंड आउट दी पावर इफ़ EMF इज़ गिवन, उहदी वैल्यू है और करंट है, तो तुसी पावर फाइंड कर सकते हो। यूनिट्स की है पावर दे? पावर दा यूनिट हुंदा है वॉट। ठीक, पावर दा की यूनिट है वॉट है। और अगर 1 वॉट लिखना है तो कादे बराबर होएगा? वोल्टेज दा यूनिट की है? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दा, और करंट दा यूनिट 1 एम्पीयर। तो इनू देख के असी 1 वॉट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कि इलैक्ट्रिक पावर जिहड़ी है किसी भी डिवाइस दी, जो भी असी सर्किट कंसिडर किया, उहदी पावर 1 वॉट है। कदों? जदों 1 एम्पीयर करंट जिहड़ा है उस सर्किट दे विचों फ्लो कर रहा है, और वो करंट अपने आप तो फ्लो नहीं किता, किहदे कारण है? जदों उस सर्किट दे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट अप्लाई किया। ठीक है, तो इलैक्ट्रिक पावर ऑफ अ सर्किट और या फिर डिवाइस इज सेट टू बी 1 वॉट अगर करंट flows through the circuit is 1 ampere when
कदों होएगा इदा, जदों 1 वोल्ट की जो बैटरी या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, ये हो गई साडे कोल 1 वाट की डेफिनेशन। इस तो बाद की है, इस तो इलावा होर किहड़े किहड़े यूनिट्स हो सकते हैं। हायर यूनिट्स ਇਹਦੇ की कह सकते हैं, बिगर यूनिट्स या कह दीए किलोवाट हो सकता है। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट ਦੇ ਅੰਦਰ 10 रेस्ट पावर 3 वाट्स है। ਇਹ याद रखांगे, कई बार न्यूमैरिकल 'ਚ पावर की वैल्यू किलोवाट्स 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ है, तो हमेशा ਅਸੀਂ ਸਮੋਲਰ यूनिट्स 'ਚ कन्वर्ट करना ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 10 रेस्ट पावर 3 वाट लिख ਦਾਂਗੇ। अगर मैगावाट है तो मैगा 'ਚ 10 रेस्ट पावर 6 वाट है। ये असी याद रखना है। इस तो बाद असी होर भी फॉर्मूलास पावर दे लिख सकते हैं। पिछे फॉर्मूला पावर का असी कीता P इज़ इक्वल टू वी आई। अगर मैं ओम्स लॉ लगा दा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इज़ इक्वल्स टू आई आर है, तो V की जगह तो इत्थे आई आर लिख सकते हैं। तो पावर का एक होर फॉर्मूला हो गया, एक आए पहला सी आई स्केयर इंटू आर हो जाएगा पावर का फॉर्मूला। तो पावर के असी ये सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं, या एक करके बाकी असी उहदे चों फाइंड आउट कर सकते हैं। हुण इत्थे अगर मैं करंट की वैल्यू पुट करदा, पहले असी वोल्टेज की वैल्यू पुट करके फॉर्मूला कढ़िया, हुण वोल्टेज नहीं पुट करांगे, करंट पुट करांगे। हुण असी की करांगे, इत्थों ही आए किहदे बराबर है V बाय आर। ठीक है, उन्होंने इत्थे पुट कर दिन्ने आ, तो पावर की हो जाएगा V इंटू V बाय आर। तो पावर का फॉर्मूला की हो जाएगा V स्केयर अपॉन आर। तो 3 फॉर्मूलाज असी याद रखने हैं पावर दे। न्यूमैरिकल 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 चीज़ां दित्तियां है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ते करंट तो ये वाला फॉर्मूला, अगर करंट रेजिस्टेंस तो ये वाला होएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके असी न्यूमैरिकल्स जो है सॉल्व करने हैं। हुण इस तो बाद की है कुछ प्रैक्टिकल, मतलब जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ पावर। पावर कह दिए या फिर एनर्जी दे फाइंड कर लिए। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ, अगर इलैक्ट्रिक एनर्जी पहला लिखते हैं उहदे तो ही पावर भी फाइंड हो जाएगी। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ इलैक्ट्रिक एनर्जी अगर असी गल करिए, एनर्जी मतलब वर्क डन। वर्क डन का मैं फॉर्मूला लिख लिया, W इज़ इक्वल टू P इंटू टी। वी आई भी है। हुण असी नवे फॉर्मूला तो प्रैक्टिकल यूनिट्स निकाल लिया। P इंटू टी किद्दां आया साडे कोल, क्योंकि पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन की हो जाएगा पावर इंटू टाइम। तो असी इत्थे लिख दिता। हुण की होएगा, वर्क डन का यूनिट असी की कीता होया है, वर्क डन का यूनिट असी नवा कढ़ना है। वैसे तो जाउल है, पर इहदी हैल्प नाल पावर का यूनिट की हुंदा है वॉट, 1 वॉट। टाइम का यूनिट की है, यूनिट असी इत्थे सैकेंड नहीं कंसिडर करना, असी इत्थे 1 आर बिगर यूनिट कंसिडर करना है। और इनू असी है तो 1 वॉट आर है, इत्थे मैं इस तरह लिख दिता 1 वॉट आर। ठीक है, वर्क डन का एक तो जाउल यूनिट है, या ज़्यादातर प्रैक्टिकली यूज़ किया जाने वाला यूनिट है 1 वॉट आर। किद्दां निकलिया, पावर 1 वॉट, टाइम 1 आर लैके चलांगे तो ये वाला यूनिट भी असी कंसिडर करते हैं इलैक्ट्रिक एनर्जी का। या इत्थों पावर कढ़नी है तो 1 वॉट इज़ इक्वल टू 1 वॉट आर वर्क डन डिवाइडेड बाय 1 आर टाइम। हुण 1 वॉट आर दी डेफिनेशन की है, 1 वॉट आर कादा यूनिट है, एनर्जी का। तो असी की लिखांगे, एनर्जी डेसीपेटेड। डेसीपेटेड मतलब यूज्ड या फिर कंज्यूम्ड इन एन इलैक्ट्रिक सर्किट। कदों 1 वॉट आर कही जाएगी, अगर उस डिवाइस दे अंदर पावर कितनी है 1 वॉट दी यूज़ हो रही है, किन्ने टाइम दे लिए 1 आर दे लिए। इत्थों ही पता चल रहा है ना, 1 वॉट पावर 1 वॉट दी है, टाइम कितना है 1 आर दा लिया है, तो एनर्जी डेसीपेटेड नूं असी की बोल दांगे 1 वॉट आर बोल दांगे। इस तो बाद होर भी यूनिट्स है, एक होर हुंदा है किलो, 1 किलो वॉट आर। ठीक है, ये भी इलैक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है। एक आधे बराबर है 1 किलो वॉट पावर यूज्ड इंटू 1 आर टाइम। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो इस तो बाद इनू असी किलो वॉट आर नू असी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, BO
BOT ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨ BOT। ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ BOT ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो 1 किलोवाट आर या BOT इज़ व्हाट कि एनर्जी डेसीपेटेड इन अ सर्किट इज़ 1 किलोवाट आर। कदों, अगर 1 किलोवाट दी पावर यूज़ हो रही है किन्ने टाइम दे लिए, फॉर 1 आवर। ठीक, इस तो बाद असी की कह दिंदे आ कि 1 किलोवाट आर इज़ इक्वल्स टू, अगर वाट च लैके चलिए किलोवाट च किन्ने वाट है, 10⁻³ वाट आवर भी असी इत्थे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी असी याद रखांगे, किलोवाट की जगह पर 10⁻³ वाट लिख दिता, आर्स नू असी इस तरह लिख दिता। इस तो बाद की है, वाट की जगह पर असी की लिख सकते हैं, डेफिनेशन देखो पावर दी। पावर च की है, वाट पावर का यूनिट है, कादे बराबर है, वर्क डन का यूनिट असी की किया होया है, जाउल। टाइम का यूनिट की है, सैकेंड। तो पावर वाट जो है उन्होंने असी की लिख सकते हैं, जाउल पर सैकेंड भी लिख सकते हैं। तो यही चीज़ मैं इत्थे यूज़ करूँगी, वाट की जगह पर असी लिख देंगे 10⁻³ जाउल पर सैकेंड, और नाल की चल रहा है, आर्स चल रहे हैं, तो मैं H लिख दिता। हुण देखो ज़रा इहदे च की है, आर्स नू भी असी स्मॉलर यूनिट्स च लैके चलना है, सैकेंड्स दे विच। तां 1 आवर दे विच किन्ने सैकेंड्स हुंदे है, 16 × 60 कर दांगे, तो साडे कोल 3600 सैकेंड आ गए इत्थे। इनू असी इत्थे सबसीट्यूट कर दांगे, तो की आ जाएगा 10⁻³ जाउल पर सैकेंड इंटू 3600 सैकेंड। और जदों असी इनू कैलकुलेट करते हैं तो साडे कोल 1 किलोवाट आर कादे बराबर आ जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जाउल। और ये वैल्यू असी लर्न करनी है। ठीक है, कई बारी जो नुमैरिकल है उहदे च किलोवाट आर च जो एनर्जी दिती हुई है, अगर तुहानू कन्वर्ट करन नू कह रहे हैं जाउल च, तो जाउल च उहदी वैल्यू जिहड़ी है वो पता होनी चाहिए है। नैक्सट टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टेंसिस। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਮੋਲਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ 2 ओम। ठीक है, तो लार्जर वैल्यू 1000 2000 बहुत ज़्यादा रेंज तक असी उन्हां दियां वैल्यूज़ लै सकते हैं रजिस्टेंसिस दियां। ठीक है, तो ज़्यादातर जिहड़ियां ये रजिस्टेंसिस हुंदियां जिन्हां दी वाइड रेंज हुंदी उन्हां नूं असी नाम दिंदे आ कार्बन रजिस्टेंसिस। ठीक है, तो कार्बन रजिस्टेंसिस दी डेफिनेशन च असी की लिखांगे, दी वैल्यू ऑफ रजिस्टेंसिस, मोस्टली जिहड़ियां रजिस्टेंसिस इलैक्ट्रिक सर्किट्स च यूज़ कीतियां जांदियां है, उन्हां दियां वैल्यूज़ जिहड़ियां है वेरी ओवरऑल वाइड रेंज। सच हाई रजिस्टेंसिस यूजड आर, जिहड़ियां हाई रजिस्टेंसिस है इन्हां नूं असी बोलते हैं कार्बन रजिस्टेंसिस। ठीक है, और इन्हां दी वैल्यू किस तरह असी डिसाइड करते हैं, उहदे लई कुछ कलर कोड्स की हेल्प लई जाती है। ठीक है, एंड दी वैल्यूज़ ऑफ सच रजिस्टेंसिस आर मार्कड अकॉर्डिंग टू कलर कोड। ठीक है, तुसी अगर किते किसी सर्किट नूं ओपन करके देखिया होए, या असी कोई भी कई बारी जिद्दां घरां दे विच कोई भी इदां दा सर्किट है जो खराब है, ओपन करन दा अगर सानू मौका मिले तो उहदे च अगर रजिस्टेंसिस हुंदियां है तो बेसिकली रजिस्टेंस या जो है नैट ते अगर तुसी देखो रजिस्टेंसिस कुछ इस तरह दियां हुंदियां है, उहदे उपर कुछ बैंड्स बने हुंदे इस तरह। ठीक है, और ये बैंड्स नू कोई ना कोई कलर दिता हुंदा, हर एक बैंड 4 बैंड हुंदे बेसिकली, हर एक रजिस्टेंस जिहड़ी है उहदे उपर 4 बैंड्स बने होणगे। बैंड मतलब लाइन्स लगियां होणगियां, और इन्हां लाइन्स दे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होणगे। मतलब जो भी रजिस्टेंसिस है, हुण ये रजिस्टेंस है, मैनू नहीं पता है किन्ने ओम की रजिस्टेंस है, 10 ओम की है, 20 है, 30 है, की इहदी वैल्यू है वो किस तरह डिसाइड आउट होएगी, जो इहदे उपर ये बैंड्स जिहड़े है लाइन्स
ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 4, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ठीक है, हुण 4 ਕਿਹੜੇ बैंड है, बैंड ए, पहले वाले बैंड ਨੂੰ ਅਸੀਂ बैंड ए बोलांगे, सैकेंड ਨੂੰ बी, सी एंड डी। जो फस्ट बैंड है वो की है सानू दसेगा फस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ रेजिस्टेंस यूज़ करांगे ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ बैंड होएगा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ वैल्यू ਦਾ पता चलेगा, दूजे बैंड तो दूसरी वैल्यू, ਜਿਹੜਾ तीसरा बैंड होएगा ਉਹਦੇ कलर तो असी डेसीमल मल्टीप्लायर मतलब 10 रेज़ टू पावर 0 है, 1 है, 2 है, ये पता चलेगा। थर्ड बैंड के कलर तो पता चलेगा टॉलरेंस, मतलब मैक्सिमम कितनी टॉलरेंस दी रेजिस्टेंस है। ठीक है, और कलर्स दे लिए असी एक वाला जो है टेबल याद करना है, और टेबल नू याद करन दा मैथड भी है साडे कोल, ओनू भी असी डिस्कस करते हैं कि केड़ा एक मैथड असी याद रखना है। पहले टेबल जो है उहदे च की असी चीज़ां लिखियां है। सब तो पहला लैटर्स, ये लैटर्स इस तरह ही लिखने हैं, असी इन्हां नू उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, और इन्हां नू याद करन दा मैथड भी असी सिखदे हां। ठीक है, इत्थे बी का मतलब पहले ब्लैक होएगा, ये ब्लैक ही होएगा, इसका मतलब असी इत्थे ब्राउन नहीं लिख देना, ब्लैक ही होएगा, ये याद रखना। इस तरह असी ये सारे जिहड़े है अल्फाबैट्स नू याद करना है, उहदा मैथड असी सिखदे आ की है। बी, बी, आर, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो है, सारा याद रखांगे। याद करन दा मैथड की है, ये वाली चीज़ नू असी थोड़ा अपने दिमाग 'च रखांगे। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, की मतलब है, मतलब कुछ नहीं कह लो, असी इनू याद करन दा एक तरीका सीखिया कि बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इत्थे बी दा मतलब असी याद रखना है ब्लैक, अगले वाले बी दा मतलब है ब्राउन, आर दा मतलब है रेड, ओ दा मतलब है ऑरेंज, वाई दा मतलब है येलो। इत्थे सारा नहीं चुकना असी, पहला जी का मतलब है ग्रीन, फिर उस तो बाद ब्रिटेन च बी का मतलब है ब्लू, फिर उस तो बाद वेरी च वी का मतलब है वायलेट, फिर गुड च जी का मतलब है ग्रे, और वाइफ च डब्ल्यू का मतलब है वाइट। इनू इस तरह से याद करना है। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैविंग चलो ना भी लईए असी क्योंकि एच तो कुछ नहीं है, ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक, ये कलर्स याद कर ले। फिर इन्हों फिगर्स, हुण जे बैंड ब्लैक कलर दा है तब फिगर असी यूज़ करनी है 0, पहली फिगर। ठीक है, अगर बैंड ब्राउन कलर दा है तो फिगर यूज़ करनी है 1, तो 0 1 2 3 4 ये 9 तक। इस तरह हुण मल्टीप्लायर है, जे ब्लैक है तो 10 रेज़ टू पावर 0, फिर 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 10 रेज़ टू पावर 9 तक कलर। उस तो बाद है जो लास्ट वाला बैंड है। ठीक है, अगर लास्ट वाले बैंड का कलर गोल्ड है तो टॉलरेंस, अगर लास्ट वाले बैंड का कलर गोल्ड है तो टॉलरेंस जी है 5% है, सिल्वर है तो 10% है, नो कलर है मतलब लास्ट वाले बैंड के ऊपर कोई भी कलर नहीं है तो 15% टॉलरेंस होएगी। इनू याद या तो इस तरह कर लिए गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, या फिर असी इनू इस तरह भी याद कर सकते हैं। पहला तो बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, फिर इनू कितना याद करना है, गोल्ड, सिल्वर, नेकलेस। ठीक है, गोल्ड मतलब गोल्ड ही हो गया, सिल्वर हो गया, नेकलेस मतलब नो कलर। ये याद करन दा तरीका है। इस टेबल नू लर्न इस तरह करना है। इनू लर्न करन तो बाद हुण देखो जो भी रजिस्टर है उहदे ते 4 बैंड है। एक आपां जे न्यूमैरिकल करके देखिए इहदे अंदर, सपोज कोई भी कार्बन एक जिहड़ा है रजिस्टेंस है फॉर विच bands A, B, C, D are of color brown, green, orange and D band is of silver color। ठीक है, इत्थे मैं लिख लिया A दा की कलर है, पहले जो बैंड का कलर है ब्राउन, दूसरे बैंड का कलर है ग्रीन, तीसरे बैंड का कलर है ऑरेंज एंड फोर्थ बैंड का कलर है सिल्वर। हुण ए बैंड ते ब्राउन है, ब्राउन दे लिए फस्ट फिगर असी की लैके चलते हैं, फिगर 1। ब्राउन दे लिए असी की लैके चलना है 1, तो असी इत्थे की लिख लांगे 1 लिख लांगे पहले। ठीक, इस तो बाद की है साडे कोल सैकेंड बैंड ग्रीन, ग्रीन दे लिए असी की लैके चलांगे सैकेंड फिगर, ग्रीन दे लिए है 5, तो असी की लिख लांगे
5 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 15। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬੈਂਡਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਗਰਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ। ਥਰਡ ਬੈਂਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ, मतलब ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ठीक है, हुण थर्ड कलर किहड़ा है साडे कोल, थर्ड कलर है ऑरेंज। हुण ऑरेंज के लिए असी देख लैने आ मल्टीप्लायर किहड़ा है, ऑरेंज के लिए आएगा 10⁻³ तो असी की लिख लांगे इनटू 10⁻³ ठीक। फिर टॉलरेंस लिखन तो पहला असी इत्थे प्लस माइनस लिखते हैं, ठीक है। टॉलरेंस दे लई असी इत्थे किहड़ा कलर दिता होया है सिल्वर, सिल्वर दे लई टॉलरेंस की वैल्यू कितनी है 10%, तो असी इत्थे की लिख देंगे +-10%। तो ये वैल्यू है साडे कोल रजिस्टर जिहड़ा भी यूज़ किया। इसे तरह सैकेंड अगर असी देखिए एक होर रजिस्टर, फर्स्ट बैंड ब्राउन है, सैकेंड ऑरेंज है, थर्ड वाइट है, फोर्थ नो कलर। ब्राउन है फर्स्ट बैंड, ब्राउन के लिए असी किहड़ा फिगर यूज़ करते हैं 1, असी इत्थे 1 लिख लांगे। फिर ऑरेंज है, ऑरेंज के लिए असी देख लांगे किहड़ा फिगर यूज़ होएगा 3 यूज़ है, तो असी इत्थे 3 लिख दिता। फिर मल्टीप्लाई। फिर थर्ड बैंड इज़ वाइट, वाइट दे लिए किहड़ा कलर यूज़ हो रहा है साडे कोल लास्ट ते वाइट है, वाइट लिए 10⁻9 आ जाएगा, तो इत्थे 10⁻9। फिर प्लस माइनस, फोर्थ बैंड पे नो कलर है, नो कलर मतलब 15% टॉलरेंस, तो असी इत्थे की लिख देंगे इन +-15%, ठीक है। ये हो गई साडे कोल रजिस्टर जो यूज़ हो रहा है उहदी वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है कि ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स की है। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स इत्थे की है कि जो रजिस्टर मतलब की है रजिस्टेंसेस, ठीक है, जो मैनमेड या एक्सटर्नल रजिस्टेंसेस है जिन्हों असी इस तरह जो सिंबल यूज़ करते हैं उन्होंने रजिस्टर्स भी कह देंगे हैं। हुण ये रजिस्टर्स नूं असी किद्दां ग्रुपिंग किद्दां कर सकते हैं, एक तो सीरीज़ च हुंदी है ग्रुपिंग और एक हुंदी है साडे कोल पैरलर च। सीरीज़ एंड पैरलर दो तरह की ग्रुपिंग हुंदी है। तो तुसी यूनिट 1 च जिवें कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग की सी, इस तरह सीरीज़ ते पैरलर च रजिस्टर्स की ग्रुपिंग है। हुण सब तो पहला सानू सीरीज़ दे बारे च पता होए कि मतलब की है सीरीज़ की ग्रुपिंग का। तो इस तरह की ग्रुपिंग च की होएगा, मान लो मेरे को एक तो ज़्यादा रजिस्टेंसिस है, एक मेरे को रजिस्टेंस है, एक असी होर रजिस्टेंस कंसीडर की, तो हर एक रजिस्टेंस के देखो 2 एंड्स है, ठीक है, जिन्नियां मर्जी कंसीडर कर लीए। जदों हर एक रजिस्टेंस का एक एंड अगे दूजी रजिस्टेंस नाल कनैक्टेड है, पर ए वाला एंड जो है इस रजिस्टेंस का फिर तो दोबारा एदे नाल ही नहीं कनैक्टेड, किते होर किसे होर रजिस्टेंस, मान लो इत्थे रजिस्टेंस एक होर है एदे नाल कनैक्टेड है, तो इस तरह की ग्रुपिंग नूं असी की कह दिंदे आ कि साडे कोल सीरीज़ दे विच ग्रुपिंग है। पर अगर साडे कोल की होएगा, मान लो कि एक रजिस्टेंस इस तरह है, दूसरी रजिस्टेंस इस तरह है, ठीक है, इस रजिस्टेंस का ये वाला एंड एदे नाल है और इसे रजिस्टेंस का यही एंड ओही वाली अगली रजिस्टेंस दे नाल कनैक्टेड है, तो पैरलर, ठीक। अगर एक एंड ही अगली रजिस्टेंस नाल कनैक्टेड है तो सीरीज़ च है, जे दोनों दे दोनों एंड अगे जाके ओही रजिस्टेंस अगली वाली नाल उहदे भी दोनों एंड्स नाल कनैक्टेड है तो पैरलर है, ठीक है। अगर असी इस तरह लैके चलते, जिस तरह असी इत्थे बनाई डायग्राम, 2 रजिस्टेंसेस है, दोनों रजिस्टेंसेस का एक एक एंड कनैक्टेड है, दूसरा एंड आपस च कनैक्टेड नहीं है। जे मैं इस चीज़ नूं इस शेप च भी लैके आ जा तो ये भी पैरलर कनैक्शन है, इनू असी सीरीज़ नहीं बोलांगे, ठीक है। तो कई बारी जो डायग्राम ड्रॉ ही इदा की हुंदी है, साडे दिमाग च फिट है कि इस तरह का कुछ भी है तो पैरलर है, अगर सीधियां इस तरह लगियां है कनैक्शनस तो सीरीज़ है। मेन इहदे च की है रूट कॉज इहदा कि 2 एंड्स है हर एक रजिस्टेंस ते, अगर मान लो पहली रजिस्टेंस का एक एंड ही अगली नाल कनैक्टेड है, दूसरा एंड जिहड़ा है अगली रजिस्टेंस ए वाली नाल नहीं कनैक्टेड, किते होर कनैक्टेड है, ठीक है, तो सीरीज़ है। अगर इत्थे देखो दोनों का आपस च कनैक्शन है, दूजा एंड हुण घुमा के फिर दोबारा तो लग्या तो अगली रजिस्टेंस नाल ही है, तो अल्टीमेटली यही कनैक्शन है, मतलब ये दोनों डायग्राम्स सेम है,
ठीक है, मतलब हर एक रेजिस्टेंस दे ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ रेजिस्टेंसिस है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ एंड्स आपस 'ਚ ही कनेक्टेड है ਤਾਂ सीरीज़ अगर ਤਾਂ सॉरी पैरलर है अगर एक एंड कनेक्टेड है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ सीरीज़ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ रेजिस्टेंसिस इन सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ डायग्राम बनाने ਆ। सीरीज़ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ डायग्राम्स नहीं ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਨ ਅਸੀਂ डायग्राम ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, सपोज 3 रेजिस्टेंसिस कंसिडर कर लिया सी, एक का नाम R1 है, R2 है, दूसरी थर्ड है R3, ठीक है, और एक बैटरी कनेक्टेड है, इन्हां दे अक्रॉस बैटरी दी वोल्टेज है V कंसिडर कर लो या फिर EV कंसिडर कर सकते हैं, जिद्दां मर्जी करके चल लो, ठीक है। उस तो बाद असी की कह दिंने आ कि इहदे च करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नैगेटिव टर्मिनल। सीरीज़ कनैक्शनस च एक गल ध्यान च रखनी है, करंट जिहड़ा है सारियां रेजिस्टेंसिस च सेम फ्लो करेगा, मतलब आई करंट है इस रेजिस्टेंस च भी उन्ना ही जाएगा, अगली च भी उन्ना ही है, सेम जाएगा। और इहदे च सीरीज़ च की प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो ये वाली रेजिस्टेंस काम नहीं कर रही, किसी कारण ये खराब हो गई तो करंट जिहड़ा सर्किट च फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट जिहड़ा है पहला इस रेजिस्टेंस चों पास करके फिर दूसरी कोल जाएगा, फिर तीसरी कोल जाएगा, ठीक है। तो अगर पाथवे च कोई एक भी खराब है तो करंट अगे फ्लो नहीं करेगा। ये चीज़ हो गई सीरीज़ के अंदर। एक गल एक ही ध्यान रखनी है, सीरीज़ च करंट सब दे अंदर सेम जाएगा। फिर पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा है हमेशा 2 पॉइंट्स च है, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रॉस होएगा, क्योंकि 2 एंड्स ये वाले हो गए ना, जो इत्थे है सेम ही पोटेंशियल इत्थे जाएगा अगे, क्योंकि इन्हें अगे जा फ्लो करवाना है चार्ज नू, तो जिन्ना पोटेंशियल इस एंड ते है या इस एंड ते है सेम ही इन्हां रेजिस्टेंसिस दे ए वाले एंड्स ते। तो पोटेंशियल जिहड़ा है कुछ पार्ट्स च इस तरह डिवाइड होएगा, V1 इहदे अक्रॉस हो गया सपोज, V2 पोटेंशियल डिफरेंस इहदे अक्रॉस है, V3 इहदे अक्रॉस, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो किते असी कह दिंने आ ज़्यादा वोल्टेज यूज़ हुई, मतलब मान लो रेजिस्टेंस ज़्यादा वड्डी है, मतलब ज़्यादा वैल्यू है रेजिस्टेंस की, तो बैटरी का उत्थे असी कहिए पुश उन्होंने ज़्यादा लगाना पेगा ना, उत्थे जिथे ज़्यादा रेजिस्टेंस का काम की है, एक ऑब्सटैकल क्रिएट करना करंट नू। मान लो पहली रेजिस्टेंस मेरे को वड्डी है एज़ कंपेयर टू सैकेंड, तो इत्थे बैटरी जिहड़ी है उन्होंने ज़्यादा जो है वर्क डन कह दो या पुश कह दो या पोटेंशियल अप्लाई करना पएगा कि करंट फ्लो करे, तो V1 V2 V3 डिफरेंट वैल्यूज़ होणगियां, ठीक। तो यदी डेफिनेशन सीरीज़ च की कहने आ, 2 और मोर रजिस्टर्स, एक या एक तो ज़्यादा रजिस्टर्स उन्होंने सीरीज़ च कनैक्शन किया, तो यदा मतलब की है सेम करंट पास करे थ्रू ईच ऑफ देम, बट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस कॉम्बीनेशन की होए डिफरेंट होए, ठीक है जी। तो हुण असीं इहदे च की कवांगे कि साडे कोल फस्ट रेजिस्टेंस दे अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I R1 सेम है करंट, करंट नू I लिखा, रेजिस्टेंस R1 है। सेकेंड जो रेजिस्टेंस है उहदे अक्रॉस कितनी वोल्टेज अप्लाइड है I R2, थर्ड है उहदे अक्रॉस है I R3, नंबर 1 हो गया, 2 है, 3 है, ठीक। और बैटरी कितनी वोल्टेज दी है, पोटेंशियल दी है V दी है, तो टोटल किस तरह लिखांगे, V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V नू भी असी किस तरह लिख सकते हैं, I इंटू R लिख सकते हैं, अगर नैट रेजिस्टेंस नू असी R दे नाल डिनोट किया। तो हुण RS भी लिख सकते हैं क्योंकि सीरीज़ है, या कला R लिख सकते हैं। हुण V की जगह ते असी की पुट कर देंगे, IRS पुट कर देंगे, V1 मतलब IR1 IR2 प्लस IR3, और सारे चो I जो की हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, और उन्होंने असी की कर देंगे कैंसल आउट कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I नाल I कैंसल, तो R सीरीज़ की हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। तो सीरीज़ च हमेशा रेजिस्टेंसिस नू ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस जो है फाइंड आउट करांगे, ठीक है जी। हुण इस तो बाद की है रजिस्टर्स इन पैरलर। जदों असी पैरलर च कनैक्शनस करने हैं, पहला तो असी कनैक्शनस लगा दिए, एक तो ज़्यादा रजिस्टेंसिस है मान लो, ठीक है। फर्स्ट रेजिस्टेंस पैरलर च मतलब
हर एक रजिस्टेंस दे एंड्स जिहड़े है आपस 'ਚ एक दूजे नाल कनैक्टेड है। एक होर अगर लगा दईए वो भी उत्थों ही कनैक्ट होके अगे जाएगा इस तरह, ठीक है। तो इनू असी R1 कंसिडर किया, R2 है, R3 है, और फिर असी एक बैटरी लगा दी, उदी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है V, सपोज करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होएगा। और देखो जिहड़ा करंट इत्थे फ्लो किया वो हुण एक रजिस्टेंस चो लंघ के दूजे 'ਚ नहीं जाएगा, क्योंकि इत्थों बड़े आराम नाल असी देख सकते हैं कि करंट जिहड़ा है कुछ इस वायर 'ਚ चला जाएगा, कुछ इस 'ਚ जाएगा, कुछ इस 'ਚ, ताकि एक रजिस्टेंस दे खराब होने दे नाल करंट दे फ्लो 'ਚ कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। मान लो ये वाली रजिस्टेंस खराब है पर करंट इस डायरैक्शन नू फॉलो कर सकता है या नीचे दी जा सकता है, तो करंट विल फ्लो थ्रू दी सर्किट इवन इफ वन रजिस्टेंस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर एक रजिस्टेंस काम नहीं भी कर रही तो भी करंट फ्लो करेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया जो सीरीज़ सी उहदे च अगर एक भी खराब है तो करंट अगे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि उहदे विचों फ्लो करके सेम करंट अगे जाना सी, ठीक है। इत्थे की है, इत्थों ही करंट 3 डायरैक्शनस 'ਚ हो गया। सपोज इनू मैं I1 बोल दिता, इत्थे I2 करंट हो गया, इत्थे हो गया I3 करंट। पर हुण देखो पैरलर 'ਚ की है, करंट दियाँ वैल्यूज़ डिफरेंट हो गई पर पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा 2 पॉइंट्स दे विच है, 2 एंड्स दे विच। यही 2 एंड्स इत्थे जाके आए, ये 2 एंड्स सारियां रजिस्टेंसिस दे नाल ही कनैक्टेड है ना। देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 2 एंड्स, यही 2 एंड्स मतलब ए वाले एंड्स, इत्थे भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और ये दोनों एंड्स हर एक रजिस्टेंस नाल कनैक्टेड है। यही 2 एंड R1 नाल भी है, यही 2 एंड्स R2 नाल भी है, यही 2 एंड्स R3 नाल भी है, और यही एंड्स मतलब ए वाले एंड्स। द पोटेंशियल V ही रहेगा अक्रॉस ऑल दी रजिस्टेंसेस, ठीक। ये गल हो गई। यही डेफिनेशन च असी लिखांगे, 2 और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनैक्टेड इन पैरेलल इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ देम इज इक्वल, ठीक है, टू दी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, बट करंट इज डिफरेंट अक्रॉस ऑल दी रजिस्टर्स, ठीक। ये हो जाएगा। हुण इहदे च असी किद्दां स्टार्टिंग करांगे, जिहड़ी चीज़ डिफरेंट है उहदा सम लिख लो, I1 प्लस I2 प्लस I3। जिद्दां सीरीज़ च की डिफरेंट होना सीगा पोटेंशियल, तो उन्हां दा सम लिख के ओम्स लॉ अप्लाई किया। इत्थे भी असी इस तरह लिख दिता। हुण ओम्स लॉ दे अकॉर्डिंगली असी की कहने आ, साडे कोल पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है सब दे अक्रॉस। सपोज फस्ट दे अक्रॉस V इज इक्वल्स टू करंट कितना है I1 और रजिस्टेंस कितनी है R1। इत्थों I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि इत्थे पुट करना है तो I1 ही फाइंड करांगे। I1 की हो जाएगा V/R1। इस तरह I2 फाइंड करांगे, V इज इक्वल्स टू I2 R2, और I2 की हो जाएगा V/R2। इसी तरह I3 कैलकुलेट हो जाएगा V/R3, और टोटल I अगर कैलकुलेट करना है तो वो भी की लिख देंगे V/R, टोटल रजिस्टेंस नू RP, क्योंकि पैरेलल च फाइंड करनी है। ये हो गया। सारिया चीज़ों को असी सबसीट्यूट कर देंगे तो की आ जाएगा, I की जगह पर V/RP, I1 की जगह पर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। सारे चो V कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और V जो है कि हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो इत्थे की बच गया 1/RP पैरेलल कनैक्शनस दे विच, जो है रेसिप्रोकल लैके चलना है अगर पैरेलल च साडे को रजिस्टेंसिस कनैक्टेड है, ठीक। हुण जो सीरीज़ च अगर कनैक्टेड है ज़्यादातर नुमैरिकल्स दे विच हुंदा है। नुमैरिकल्स च तुहाडे को रजिस्टर्स जो है या तो सीरीज़ च होणगे या पैरेलल, या कुछ सीरीज़ च है कुछ पैरेलल, तो तुसी फॉर्मूलाज लगाने हैं तो फाइंड करना है टोटल, वो भी असी नुमैरिकल्स करांगे, ठीक है। पहला असी सिर्फ फॉर्मूलाज याद कर रहे हैं। एक गल होर ਇਹ है रजिस्टर्स की गल, जो कैपेसिटर्स कितने सी पिछले चैप्टर च, जो कैपेसिटर सीरीज़ च सी वो ये नालों उल्टा सी। ये चीज़ ध्यान च रखनी है। कैपेसिटर्स जो सीरीज़ च सी उदों रेसिप्रोकल लैके चले सी, कैपेसिटर्स जो पैरेलल च सी असी उदों सिंपल इस तरह सम किया सी। तो इन्हों आपस च तुसी कन्फ्यूज़ नहीं होना, एक नूं याद कर लो या तो रजिस्टर्स याद कर लो, कैपेसिटर्स के केसिस च उल्टा।
ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਿੰਪਲ ਐਡ, ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਪੈਸੀਟਰਸ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 'ਚ ਐਡ ਸੀ, ਪੈਰਲਰ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 'ਚ ਐਡਿਡ ਹੈ ਔਰ ਪੈਰਲਰ 'ਚ ਕਪੈਸੀਟਰਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਐਡਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ।